خدا نے ایک ایسا رستہ بنایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں ماڈریٹر بشپ تقدس بشپ آزاد مارشل صاحب کا اور بشپ علیم صاحب جو فیصل آباد ڈائسس کے ہیں ان کا، اور ملتان ڈائسس کے بشپ تقدس لیو راڈرک پال، ان تینوں نے مل کر بیٹھ کر فیصلہ کیا۔ پادری صاحب السمیر اب ملتان ڈائسس میں ہے، میری جگہ، وہ ملتان ڈائسس کا اب حصہ ہے، اور میں فیصل آباد ڈائسس چرچ پاکستان کا حصہ، یعنی آیا ضرور ادھر سے ہوں مگر اب میں ڈائسس کا یہاں بشپ علیم کے لیٹر سے ہی پچھلے اتوار آیا تھا، اور پادری صاحب السمیر بھی بشپ لیو کی اپوائنٹمنٹ سے وہاں یعنی این او سی لے کر وہاں گئے ہیں۔ بڑے سنجیدہ ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، لیکن ابھی تو اتنے فری میرے ساتھ بھی نہیں ہوئے، لیکن بڑے سنجیدہ، بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ کیسے ہم نے بنانا ہے کہ خدا کے گھر میں ہم نے آنا ہے، اور خدا کے گھر میں آ کر ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کچھ سمجھنے کا، اور یہ سارا دار و مدار پادری صاحب پر ہے۔ اور انہوں نے فیصل آباد ڈائسس کو بتانا ہے کہ وقت میں جو حالات بہتر نہیں تھے میں نے بہتر کیے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی اچھے انسان اپنی خدمات کے سلسلے میں آج یہاں آئے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ایک محبت اور پیار کے ساتھ ہیں۔ تو آپ سب کے کلیپنگ کے ساتھ، بھرپور تالیوں کے ساتھ پادری صاحب کو ویلکم کریں، اور باقاعدہ جو یہ رسم جو ہماری ہوتی ہے اس کا بھی آغاز کریں۔ آپ تالیوں میں پادری صاحب کو خوش آمدید کریں۔ جی پادری صاحب السمیر صاحب جب ادھر تھے تو جو لوگ تھے انہوں نے بتایا، اور بھائی جی نے بھی بتا دیا، 1994 سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں، بڑی چھوٹی کلیسیاؤں میں، ملتان ڈائسس چرچ آف پاکستان میں بطور پریسبیٹر، بطور ڈی ایس وائس چیئرمین وہاں خدمت کی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی میری خوبی یا ہماری کسی کی خوبیاں نہیں ہوتی، جو بھی خدا کے خادمین ہوتے ہیں خدا ان کو چنتا ہے، اور خدا نے ہر ایک میں خوبیاں رکھی ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کلیسیا میں بھی خدا نے، کیونکہ مقدس پطرس لکھتا ہے کہ تم سب مقدس شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، یعنی ہم سب شاہی کاہن ہیں، تو خدا نے طرح طرح کی نعمتیں اور توڑے ہمیں دیے، ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ ہماری بات ہے، یا ہم اپنے توڑ کو زنگ لگاتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، مگر خدا نے ہمیں اپنے خون سے خریدا اور چنا۔ تو میری مسز اور ہم دونوں چھوٹی سی فیملی ہیں، اور خدا نے ہمیں اس مقصد کے لیے چنا۔ آج ہمارا مضمون ہے محبت سے چلنا۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ برا اور بے دین زمانہ ہے، محبتیں کم ہو گئی، آج سے 25-30 سال پیچھے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو ان میں چاہے سادگی تھی مگر ان پڑھ بھی ہوتے تھے، مگر ان کی آپس میں بڑی محبت اور عزت اور احترام سب کچھ ہوتا تھا۔ آج کا دور ہم جب سوچتے ہیں کہ وہ اچھا تھا، اور جب ہماری جنریشن جو ہمارے بچے آگے بڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارے بزرگوں کا دن اچھا تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسیحیت
की बुनियाद ही मोहब्बत पर कायम है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी जो कोई मसीह को कबूल करता है वो जब उस पर ईमान ले आता है तो हम रूहानी तौर पर खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। ऐसे है ना। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल आप पहला बाब जाकर तो ध्यान से कभी सुबह अगर पढ़ते हैं शाम को पढ़ते हैं ध्यान से पढ़े तो वहाँ लिखा है कि अगर बाप हमारा एक है तो फिर हम बहन भाइयों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। उसमें मुकद्दस पौलुस जो है इफ्सियों का खत खोल लें 5वां बाब, उसमें वो 3 बातें बताता है। मैं ज़्यादा लंबा पैगाम और लंबी बातें नहीं आज बताऊंगा ताकि हमारे ज़हन नशीन हो जाए, कोई थोड़ी होंगी तो याद रहेंगी। इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत कोई पढ़े। क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। आमीन। बस पहले तुम क्या थे? तारीकी में थे। हम जब मसीह से दूर थे तो गुनाह की हालत में थे। जब तक हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, खुदा का बंदा यहाँ ये लिखता है कि हम नूर के फर्जंदों की तरह चलें, क्योंकि यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। दुनिया का नूर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। बड़े दिन पे हम ऊपर वो लगाते हैं स्टार, एक वो सितारा था जो रहनुमाई कर रहा था, मगर उसके साथ साथ ये उसका पैगाम है कि वो आया जो दुनिया का नूर था, खुदावंद यीशु मसीह। और खुदा का बंदा मोहब्बत से चलने के लिए कहता है पहली बात कि हम भी जब यीशु के खून से खरीदे गए हैं तो हमें नूर के फर्जंदों की तरह चलना है। दूसरी बात इसी बाब के 5वें बाब की 15वीं है। गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानव की मानद चलो। आमीन। चलने के लिए जब भी मोहब्बत से चलना है, कहना सौखा है, चलना थोड़ा औखा है। मेरे लिए भी औखा है क्योंकि मैं भी कमज़ोर इंसान हूँ। मगर यहाँ क्या कहा गया है? नादानों की तरह नहीं चलना, दानाओं की तरह चलना है। अगर हमारा कोई बेटा दानाई की बात करेगा हम बड़े खुश होते हैं। बाज़ का तो वो कंडो पिछों भी तारीफ करने जी फलाने का बेटा बड़ा धना है, अच्छी बात करता है, फलां बुजुर्ग बड़ा धना, उहदे तो मशवरा भी लेने हैं, उसकी बात की हम अहमियत देते हैं। और खुदावंद का बंदा कहता है कि जब तुम नूर के फर्जंद हो, जब तुम मोहब्बत में चलना चाहते हो तो नादानों की तरह नहीं चलना, दानाओं की तरह चलना है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अक्सर मिसाल उधर भी देता था। वहाँ मुझसे सवाल यीशु आखेगा कि तू मैनू राजी रखिया सी। खुदावंद मसीह ने खुद बयान किया कि बहुत से लोग ऐसे आएंगे, वो कहेंगे खुदावंद हमने तेरे नाम पे बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े ऐसे काम किए जो आम लोग नहीं करते थे। मगर यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम यीशु की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। हम दुआए रबानी में भी रोज दुआए रबानी पढ़ते हैं, ऐ खुदावंद जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन है थले वाली गल नहीं है, अपनी गल है।
मैं खुदा को कहता हूँ जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर है, जिस तरह ये सियारे सितारे चल रहे, एक मिनट कोई शहर रुक जाए ना तो सारिया तबाहियां हो जान। असी एक पल का अगर टाइम का या इन्हों के सर्कल का फर्क पड़ जाए ना, ये जो सर्कल बच्चे पढ़े लिखे वो उनको पता है, तो ये सारी चीज़ें तबाह और बर्बाद हो जाए। और हम दुआए रबानी तो यही पढ़ते हैं कि जिवें आसमान ते तेरी मर्जी पूरी होती है साढ़े ते भी होवे, मगर हम बाज़ औक़ात कहते नहीं खुदाया मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, जो मैं चाहना वो होवे। बाज़ औक़ात हम आपस में भी, ख़ानदानों में, बहनों भाइयों में, बहू बेटियों में, बहू सास में किस वजह से लड़ाई होती? मेरी नहीं मानती, मेरी मर्जी नहीं चलती। बहुत सारे ख़ानदानों की सुलहें कराते रहते हैं पादरी, हमारा काम भी यही है। तो ख़ानदानों में यही मसला बनता है कि मेरी नहीं कोई सुनता, बहू बेटी कह देंगी, या सास आंदी मेरी नहीं सुन दे, मगर हम खुदा की मर्जी को भूल जाते हैं। तीसरी बात, ये 5वें बाब की दूसरी आयत में पढ़ें ज़रा। और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानित और खुदा की नज़र पर कुर्बान किया। कैसे चलो? मोहब्बत से। सारे ऊंची बोलो ज़रा। मोहब्बत से। मैं बड़ा सादगी से दे रहा हूँ आज क्योंकि पहला दिन है, सादगी से सिखा रहा हूँ। मोहब्बत से चलो, और मोहब्बत भी ऐसी हो ताड़ी खुशबू आवे उहदे विचों। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा। कल मुझे मेरी एक बहन है, उसने फ़ोन किया, कोई अब तो इधर तो सारी चीज़ें ख़त्म, मैं परफ्यूम मेरा एक ख़ास वो मैं इस्तेमाल करता था उधर, तो वो शीशी मिल गई, छोटी बेटी है, छोटी सी है, वो अब किसी को नहीं दे रही, कि वो ये नहीं कह रही कि उसमें से खुशबू आ रही, कहती मुझे इसमें से पाज साहब की खुशबू आ रही। ये मेरी तारीफ की नहीं, मैं मिसाल देकर समझा रहा हूँ। आपकी मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए, मोहब्बत से ऐसे चले, ये नहीं कि सामने हंस के बोलिए तो जो कांड करन तो पीछे गिले शुरू। आपकी खुशबू आनी चाहिए, आप बाद में भी आपको अच्छा महसूस करें कि फलां भरा, फलां भैन, फलां जो भी रिश्ता है बुजुर्ग, उन्हें मोहब्बत है, और यही मसीह तालीम की बुनियाद है। और मेरे अजीजों, मोहब्बत से चलना अच्छे तर्ज ज़िंदगी की बुनियाद है, निशानदही है, निशानी है। अच्छी जिंदगी जिहड़ी है ना, कदों जिहड़ा कोई गुस्से वाला होवे, मिंट ते लड़े, या लड़ाका कोई बीबी या बुजुर्ग या वड्डा होवे, उहदे असीं लागे तो भी आने ना ही जाइए तो चंगा होता है ना, होते हैं खानदान में, मगर जो मोहब्बत से रहते हैं उनकी तरफ जाने का भी दिल करता है। तो हमारी अच्छी ज़िंदगी जो मसीह ज़िंदगी है ना, उसका निशान यही है, मोहब्बत से चलना है। और मुक़द्दस पौलुस जो इस बात के बारे में समझता है, वो ये कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। असी एक दूसरे नाल की करना है? मोहब्बत करना है। और मोहब्बत जब करते हैं तो दो बातें आती। मोहब्बत उतों शुरू होती है जो खुद इनकारी हो, मैं अपनी खुदी का इनकार करा, मैं अपनी मैं का लड़ाई इतनी शुरू होती, मैं अपनी खुदी से इनकार करूं। और दूसरी बात है कुर्बानी। कुर्बानी, ये दो चीज़ें। बाज़ औक़ात असी यही सोचे नहीं मेरे लिए ही सारा कुछ होना चाहिए, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत कुर्बानी देने का नाम है, मोहब्बत खुद इनकारी का बात है। अब चार बातें, क्योंकि हमारा, मैंने पहले कहा है, इंसान इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है सवाए खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात। वो पैदा भी हुआ पाक हालत में, ठीक है, और
उसने अपनी ज़िंदगी में मुखालफों को ये चैलेंज किया था, तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। ये चैलेंज किया सी उन्होंने मुखालफां के सामने, तो वो बड़े लभदे सन भी कितने कोई कमी लभ जाए, पर उन्होंने कोई शय नहीं सी लभदी, और उसी की हमने पैरवी करनी। मेरी पैरवी करोगे तो खड्डे च जाओगे, खूह च डिगोगे, क्योंकि मैं भी इंसान, मैं तुहाडे तो सब तो ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और मेरी ज़िंदगी की तब्दीली की जो आयत है, मुक़द्दस पौलुस कहता है ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया, जिसमें सबसे बड़ा तो सब तो गुनाहगार है, जो सब तो बड़ा किनो अपने आप को कह रहे, ये नहीं कह रहे कि सब तो बड़ा फलाना है। वो कहता है उन गुनाहगारों में जिस पर करम हुआ है, जिस पर खुदा की मेहरबानी हुई है, जिस पर खुदा का फजल हुआ है, वो मैं हूँ। और यही हमारी सोच होनी चाहिए। और उसमें पहली बात हम देखते हैं, कुर्बानी यीशु मसीह ने दी। क्या कुर्बानी दी? फिलिपियों के खत में लिखा है कि उसने आसमानों को छोड़ा और ज़मीन पर आ गया, इंसानों के मुशाबे हो गया। वो जो लामहदूद था, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई, मगर वो हमारी खातिर इंसान बनकर आ गया। और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि उसने आसमानी जलाल को छोड़ा और लिखा अपने आप को खाली कर दिया, और मौत बल्कि सलीबी मौत को बर्दाश्त किया। ये कुर्बानी, अपने आप को खाली कर देना। और जब हम मोहब्बत से चलने की बात करते हैं तो खाली करने के लिए भी दो बातें हैं, हलीमी और फरोतन होना। जब तक मेरी जिंदगी में हलीमी नहीं है, जब तक मेरी जिंदगी में फरोतनी नहीं है, तो हम मोहब्बत से चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। मोहब्बत से चलने के लिए जिस तरह मसीह ने हलीमी और फरोतनी अपने आप को खाली कर दिया, ज़मीन पर आ गया, तो यीशु फरमाते ने कि तुहाडे लिए तो जगह भी है, जानवरों लिए उन्होंने कोई ना कोई थां बनाए हुए ने, मगर मसीह के लिए सर छुपाने की जगह भी। इन्नी कुर्बानी उन्हें साडे लिए दी, जेड़ा दुनिया का खालिक ते मालक सी, दुनिया जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर उसने हमारे लिए ये कुर्बानी दी। और पहला यूहन्ना 4 बाब को पढ़े तो लिखा है कि मोहब्बत को इसी से जाना कि उसने हमसे इतनी मोहब्बत की, अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर। दूसरी बात जो है, पहली है कुर्बानी, ते दूजी गल है बर्दाश्त। पहला पतरस कोई पढ़े, बच्चे तेज ने थे, हवाले अच्छा पढ़ते। पहला पतरस 2 बाब 23 आयत। मुकद्दस पतरस जेड़ा है ना, खुदावंद यीशु मसीह के जो 3 करीबी शागिर्द थे ना 12 में से, याकूब, यूहन्ना और पतरस, उनमें से एक है जो हर काम में हम देखते हैं साथ साथ है। तो वो जो यीशु को करीब से देखता है, वो यीशु के बारे में क्या कहता है, जरा सुने। पहला पतरस उसका 2 बाब 23 है, 3 है। ना वो गालियाँ खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सबूत करता था। ये यीशु के बारे में मुकद्दस पतरस कह रहा है, ना वो गाली खाकर क्या गाली देता था, ना दुख पाकर धमकाता था। असी जे किसी को गाल ना कढ़िए, जे मार ना सकी तो फिर आने अच्छा पुछ लाँगा मैं तेरे, इन्ना तो कहना ही है ना, फिर वेखांगा तेन मौका लगा। मगर यीशु क्या करता था, वो करीबी शागिर्द यीशु की गवाही दे रहा है कि वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, ना दुख पाकर धमकाता था, बल्कि अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना, ये ताड़ा भला करे। ये मसीह
से मोहब्बत चलने की बात है। ये हमारी अमली ज़िंदगी होनी चाहिए कि हमें हमारे अंदर बर्दाश्त, पहली बात कुर्बानी और दूसरी बात है बर्दाश्त, और तीसरी जो है वो है माफ़ करना, माफ़ी। यीशु सूली ते चढ़िया है, लटकिया है, ते लोकी क्योंकि जड़ा ये सूली पे लटकाना जो है ना रोमन और उससे पहले इसको यानी ये बड़ी यानी और भी तरह से मौत दी जाती थी, सजाए मौत। सबसे जिसको हम लानती मौत कहते हैं, वो लोग समझते थे अगर हम इस पर जो सलीब पर चढ़ा हुआ इस पर लानत करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, इसलिए लोग देखकर वो लानत देते थे। मगर यीशु की आता है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर। ये माफी की बात है। हम कहते हैं कि खुदावंद जिस तरह हम दूसरों के कसूरों को माफ किया, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। मसीह ने बड़ी खूबसूरत तमसील कही। एक बंदा था जो किसी मालिक के हजारों दिनार देने थे। वो मालिक ने देखा हालत माड़ी है, गरीब है, बंदा छड़ दे, ते अगले दे 100 रुपया नहीं छड़ रहा। तो मालिक को पता लगा, उन्होंने वापस फड़ लिया, बुला लिया, आ भी तू इधर आ, मैं तेन इन्ने तो छड़ते थे, तू किसी ने 100 नहीं छड़ता। और यही बात हमें समझाने के लिए हम छोटे छोटे कसूर एक दूसरे के माफ़ नहीं करते, चाहे बहन भाई है, चाहे ख़ानदान है, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे कलीसिया जैसे भी हैं, हम साथ रहते। बाद औक़ात मैंने ऐसा भी देखा कई बहनें आपस में एवं छोटी जी गल तो 2-2 महीने की गल्लां कर दी, आपस बोलती नहीं। मगर एक खुदा का जो असूल है ना, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप अगर किसी को माफ़ कर दें तो आपका फ़ायदा होता है, आपके फ़ायदे की बात, क्योंकि आपके ज़्यादा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर आप किसी का थोड़ा भी माफ़ नहीं करते तो फिर ये ना सोचें कि खुदा सानू माफ़ कर दे। तो मेरे बच्चों, मोहब्बत से चलने के लिए ज़रूरी है तीसरी बात कि माफ़ी। और चौथी गल ये ना, जो आजकल का दौर चल रहा है, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली भी इसी तरह ही है। कोई प्रोग्राम आ जाए, शादी होवे, तो कोशिश ये होती है भी सारे तो ये बुरी बात भी नहीं, अच्छे लगना है, अच्छे तैयार होके जाना। ये मसीह तालीम भी है कि हम शादी के घर में, खुशी वाले घर में खुशी से जाएं। मगर जो चीज़ गलत बीच में आ रही है वो ये आ रही है कि हम चाहते हैं कि दूसरे से बेहतर असी चंगे होइए। रिश्तेदारां दा भी यही होंदा है, किते असी काकट भावें कर्जा चुकना पै जाए, किते घाटा ना हो जाए, किते साड़ी नमोशी ना हो जाए, होता है ऐसे। मगर मसीह तालीम कहती है कि दूसरों की बेहतरी चाहना, तो अपने से दूसरे को बेहतर समझना। और मिसाल मेरी फिर ये वही है, खुदावंद यीशु मसीह का नमूना है। लड़कपन में उदा प्यो की काम करता सी, जड़ा दुनियावी यानी हम यूसुफ खानदान में तो वो था, मुकस्सा माँ मरियम का बेटा था, मगर यूसुफ साथ था तो वो उसके साथ क्या कर बड़ाई का काम करता था। ठीक है। फिर जब खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह आया तो वो उसने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। भूखे हैं तो उनको चंद रोटियों से हज़ारों को खिला देना है। अगर कोई बदरू गिरफ्तार, उसकी बदरू निकाल देनी, मुर्दों को जिंदा करना और बेदीनों को तालीम देना। खुदावंद मसीह ने मिसालों के तमसीलों के ज़रिए से यानी लोगों को सिखाया दूसरों की बेहतरी के लिए। हम कितना दूसरों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि असी लत्ता खिंचण वाले, मैं कितना दूसरों की बेहतरी के लिए काम करता हूँ। क्या मैं सिर्फ अपनी ज़ात के आगे नहीं सोचता? मसीह ने मुझे ये नहीं सिखाया? मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों और मेरी बेटियों, आज कोई पता नहीं
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾਂ चलिया हुई ने ना मसीह दे आने दी निशानियां ने, तो उसके लिए तैयार होने के लिए ना ये 4 बातें अपने ज़हन में बना लें। कुर्बानी का जज्बा, बर्दाश्त की रूह, मुआफ़ी की रूह, अपने तो दूसरे को चंगा समझे। असी आने ना आम मिसाल में असी ये मिसाल कर रहे हैं जे किसी को बुरा आखोगे तो 3 ਉਂਗਲਾਂ अपने, ये मिसाल ये इस्तेमाल, जे यही तुम किसी को चंगा आखोगे तो 3 ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ आनी है ना। समझ रहे मेरी बात? किसी को बेहतर समझोगे, इसको दूसरे एंगल से भी कभी ले लिया करें। अमूमन असी यह मिसाल उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं जे जड़ा किसी को बुरा आंदा, मैनू कोई बुरा आखेगा ना, मैं कहा जड़ा किसी को बुरा आखेगा 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ भी, तो मैं क्यों ना दूसरे को अच्छा कहूँ ताकि 3 ਉਂਗਲੀਆਂ मेरी तरफ भी आ जाए, मैं उससे 3 गुना ज़्यादा अच्छा हो जाऊँ है। तो खुदावन मुझे और आप सबको ये तौफीक बख्शे कि हम हमेशा खुदावन यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले हों, और हमारी ये कलीसिया आने वाले दिन बड़ा दिन आ रहा है, इसीलिए फ़ौरन ये हालात चेंज हुए, वरना इस महीने में कई पादरियों के तबादले नहीं होते। तो मैं ख़ास खुदा से दुआ करके आया हूँ कि आपकी कलीसिया में अगर छोटी मोटी कोई चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके आपस में एक हो जाए। और हमारे बुजुर्गान भी यही चाहते, वो नहीं चाहते कलीसिया में कोई ऐसी चीज़ें हो। तो इस पर कोशिश करनी, कदम उठाना है, हमने पहल करनी। अगर आप पहल करेंगे, जो भी आगे आएगा इसमें, तो खुदा उससे खुश होगा और बड़ा दिन हमारा, मैं चाहता हूँ कि इधर ऐसा ही हो, सारे मिले आपस में। ज़रूरी नहीं कि लाइटिंग बोती हो तो फिर बड़ा दिन, जब तक हमारे आपस में दिल नहीं मिलते, लाइटिंग जिन्ना भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पैदा, वो सबसे बड़ी लाइटिंग होती। मैं अक्सर बड़े दिन से पहले कहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि नवे सूट होने ते बड़ा दिन, ये यीशु तुहाडी जिंदगी आ जाए तो तुहानू सूटां दी कोई ये नहीं, तुहाडे लई बड़ा दिन वही हुंदा जिहड़ा यीशु तुहाडी जिंदगी आ जाए। खुदा मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।